Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Explain briefly how wind are caused. So wind are caused due to different in the concentration of the air in two areas. If one place having higher concentration and the other place have low concentration of air, low pressure of air. So due to different in the concentration, different in the pressure, air blow from one place to another place, from higher pressure to lower pressure. And here in the book have given, you can underline it. Yes, page number 69 and second last paragraph. Page 69, second last paragraph. Convectional current also have significant effect on the weather and climate. You will leave this line. इस line को नहीं लिखोगे. When यहाँ से start करोगे. When the air at a place gets heated up, it expands and occupy more space. It therefore becomes lighter and moves up. The air pressure at that place then gets lowered. Hence, air from surrounding places rushes in to take the vacated place. This setup of convectional current in the air leading to wind and storm. सिर्फ फर्स्ट लाइन उसको छोड़ दो, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि उसका जरूरत नहीं है. उसके बाद सेकंड लाइन से पूरा विंड एंड स्टॉर्म. Next, E5. E5 के वजह से ये डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए होते. बाकी जैसे ये है ना इसका भी, लेकिन E5 जो है बस उसको डिस्कस करना है, ये इम्पोर्टेंट है. फिर किसी के माइक से आवाज नहीं आनी चाहिए. ये चैप्टर है समझने का. देखो क्यों कहते हैं कि तुम लोग प्रैक्टिस करना, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना. देखो हम तो केवल ब्लैक बोर्ड पर ही ना बनाते हैं. तो देखो मेरा हालत क्या है, एक थर्मोमीटर की तरीके से नहीं बनाता है. जल्दी में देख लो, एक हो गया और ये 10 सेंटीमीटर और 1 that is above the flame. चलो ये क्वेश्चन देखो. सुप्रिया while doing an experiment in the science laboratory kept a laboratory thermometer P 10 centimeter away. It is P and that is 10 centimeter away
on the one side of the flame of the candle. Her friend Ria kept a similar thermometer Q. Similar thermometer Q. Q above the flame of the candle as shown in the figure. सभी देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे? Yes, ma'am. हाँ Yes. तो Yes, ma'am. हाँ देखो Yes, ma'am. इसको जो है सबको म्यूट कर देंगे, अगर आवाज एक बार आएगा तो म्यूट कर देने वाले हैं। मैम अनंत हाँ अनंत कुछ बोलना चाहोगे? बोलो जल्दी से, क्या बोलना चाहोगे? जल्दी से बोलो। Question: in which of the thermometer P or Q the rise in the temperature will be faster? Give reason for your answer. मैम हाँ बोलो। मैम Ma'am, Q Q thermometer. the temperature rise will be faster because the hot air will go upward and the thermometer Q will get heat up. Very good. मैम It is the correct Ma'am, answer. the- देखो अनिका जो बोली है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ क्या है कि फिर आवाज मत करो, सब सुनो और फिर ऑप्शन आएगा, टाइम मिलेगा, हम पूछेंगे सभी से। यहाँ जो ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर it is away 10 centimeter away from the flame of the candle, but it is parallel to the flame of the candle, parallel है। और ये क्या है, Q thermometer is kept just above the flame of the candle. As you have studied कि when the air get heated up, after taking the temperature it rises up. So air just above the flame get heated up and it is rises up. And it will take the temperature, the Q thermometer will take that temperature easy way and in the easy way and in the shorter duration of time. So it will take the more temperature, more it will get heated more quickly than the P, है ना? Due to convectional current, तुमको लिखना है केवल due to convectional current temperature Q will heated more quickly than P. Clear? Yes, ma'am. हाँ मैम इस क्वेश्चन का आंसर डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं? डायग्राम बनाएंगे और उसी के जस्ट वाले जो रूल्ड पेज है उस पर लिखना है। चलो इसमें यही है कि विच P और Q विच थर्मोमीटर विल heated faster, तो heated faster और temperature will rise faster, तो it is Q और give reason, तो due to convectional current ऐसे लिखोगे तुम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन E6 in two setup X and Y shown on the next page. ये टू सेटअप है, द वायर AB and the PQR। ये हो गया, सभी के पास बुक है ना? यस मैम। और नहीं है तो नहीं, जिसके पास है जल्दी से बना। और एक बात और बता दे रहे हैं कि ई वाला क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, बुक से क्वेश्चन एक बार हम फोटो लेकर के सेंड कर देंगे और फिर एक बार हाथ से जो लिखेंगे वो सिर्फ आंसर लिख करके भेजेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन से क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है, और आंसर फिर हमारा लिखा हुआ, क्योंकि हमको उतना क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में टाइम चला जा रहा है, उसी में रात को जो है बहुत टाइम बीता है। अभी लिख करके रखे हैं, तुम लोग को सेंड करेंगे, तो हम जो है वो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन का फोटो आपको दे देंगे। ओके मैम। बेकार। E6
A6 upsetting. आवाज नहीं आनी चाहिए, तो सभी को म्यूट कर देंगे। बहुत टाइम हम लोग का चला गया है, दूसरे सेक्शन में रेस्पिरेशन चैप्टर भी हो गया है। ये फ्लेम है और इट इज द स्टैंड। Ma'am, pin P2 will fall later because pin P1 is heated fastly in comparison of pin P2. हाँ, ये पिन ये है ए बी, फ्लेम के ऊपर है, ये फ्लेम के ऊपर। और पिन ए, जैसे छवि रानी एक्सपेरिमेंट की थी वही वाला एक्सपेरिमेंट है। पी जो है स्टिक किया हुआ है, यहाँ जो है पी एक पॉइंट पर पी स्टिक है और ये पॉइंट है बी। देखो एक्सपेरिमेंट करने से कितना फायदा है, इसलिए जो घर में है जुगाड़ उसी से कर वो एक्सपेरिमेंट। हाँ, जो घर में जुगाड़ है, जो भी मटेरियल है उससे एक्सपेरिमेंट करो। तो देखो ये क्वेश्चन एकदम आराम से तुम लोग सॉल्व करोगे। मैम, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे। देखो अभी तो क्वेश्चन लिख ही रहा है, कहाँ बता रहे हो? देखो तो हम कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर न बनाते हैं ये फोटोग्राफ, इसलिए हम जल्दी में नहीं कर पाते हैं, थोड़ा होता है। इसलिए तुम लोग को कहते हैं कि बच्चे तुम लोग जो है प्रैक्टिस करो। बच्ची की कॉपी है 6 क्लास का, उसको जो है ले करके प्रैक्टिस करना है। यही वजह है कि आपको कहते हैं। R P Q R P Q R और पिन P2। पिन यहाँ है, पिन यहाँ है, सभी को विजिबल है ना? ये यहाँ है। अब देखिए क्वेश्चन, ये सेटअप X, ये सेटअप Y। हाँ, in two setup X and Y, so on the next page wire AB, ये wire AB and PQR, यहाँ देखिए ये wire PQR, wire कौन सा? PQR। PQR are made of the same material is same and have equal thickness is also equal, and the length of wire AB is equal to the diameter PR of the semicircle। ये AB का जो लेंथ है और ये इस सेमी सर्कल फॉर्म में न है, लूप के फॉर्म में है, तो इसका ये डायमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम RP and distance AB is equal। AB is equal to RP, ये इक्वल है। अब देखिए सेमी and P1 and P2 attached to the wire AB। देखिए यहाँ P1 है, ये पिन P1 और ये पिन P2। हाँ, P1 and P2 are attached to the wire AB and PQR respectively with the help of wax के मदद से। जो एक्सपेरिमेंट बुक में दिया है ना, तुम लोग किए भी हो एक्सपेरिमेंट, वही एक्सपेरिमेंट है। वैक्स कर दिया, वैक्स उसमें लगाया हुआ है और वैक्स के हेल्प से एक पिन जो है AB वायर में P पॉइंट पे है, ये P1 और सॉरी A पॉइंट पर है ये P1 और यहाँ P पॉइंट पर है P2 पिन, which
of two pin P1 and P2 will fall off later. Give reason for your answer. कौन सा पिन जो है बाद में फॉल होगा? तो अब देखो कितना अच्छा है, वही एक्सपेरिमेंट है जो छवि करके दिखाई थी, वीडियो हम सबको सेंड किए थे और कोई सानवी भी की थी। तो देखो सेम ये क्वेश्चन जो है ना उसी एक्सपेरिमेंट से है। देखो क्या है कि यहाँ देखो बच्चे, ये जो है पिन डायरेक्टली या इसका डिस्टेंस ये है और इसका डिस्टेंस ये है, लेकिन हीटिंग जो होगा मेटल के थ्रू हीटिंग है, तो यहाँ हीट सप्लाई होगा, हीट सप्लाई होगा, धीरे धीरे यहाँ इंक्रीज करेगा और फिर यहाँ आएगा, तब यहाँ आएगा। तो ये लेटर ये बाद में गिरेगा। Pin P2 will fall down later because this Yes, ma'am. heated up later. whereas this point heated up quickly Faster. due to distance of the metal. यहाँ लिख दो, आंसर में लिखो सभी, और नहीं लिखोगे तो हम सेंड कर देंगे। Pin P2 will fall later. ये इमेज बना करके लिख लो ना, इमेज के बीच बुक के पास वो जो जगह है ना उसी में लिख लो। अब ये हो गया। चलो अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज Hirdiyaka went to visit the grandparents in their village. During her morning walk there, she observed that a girl in the village would play very good music on her homemade musical instrument. Hirdiyaka was very much impressed by her skill and wanted to learn playing that instrument from her. She, however, felt hesitant to ask her to teach her. When she discussed her problem with her mother, she advised her to politely and neatly request that girl to teach her that skill. She told Hirdiyaka that just as the heat always flow from a hot object to cold object, knowledge and skill always flow to the people from his mentor. Knowledge of skill, जैसे heat का flowing जो होता है hot body to cold body होता है ना, तो उसी तरह से जो स्किल का फ्लोइंग होता है, वो स्किल का फ्लो कैसे होता है? मेंटर्स, मतलब जो गाइड करने वाला जो टीचर है, मेंटर्स टू मैम टीचर से जो उसके शिष्य है। हाँ, टू सॉरी पुपिल टू अ पुपिल फ्रॉम हर और हिज मेंटर। जैसे टीचर से फ्लो होगा स्किल अपने पुपिल में, शिष्य में, समझे? तो ये जैसे हीट का फ्लोइंग होता है। अब क्या बोल रहे, 2 3 एक साथ बोलोगे तो कैसे क्लास चलेगा? देखा, कनेक्शन ही चला जा रहा है। आज बहुत मुश्किल है कनेक्शन का, समझा? यस मैम। हाँ मैम अब आ रही है आवाज। यस मैम, अब ठीक है। हाँ, आज बहुत मुश्किल है। अब देखो, स्टेट द वैल्यू डिस्प्ले बाय हिर्दियका मदर्स। तो हिर्दियका मदर का वैल्यू क्या है? कि शी एडवाइज हर पोलाइटनेस एंड नीटनेस। ये हो गया वैल्यू डिस्प्ले बाय हिर्दियका मदर। ये हो गया नेम the 3 different mode of transfer of heat and give one example of each. The convection, conduction, radiation. You will write one example of each. Have a group talk. Convection, boiling water. Have a group talk in which a student talk
about how they learn some skill from a mentor. तो ये ग्रुप टॉक होना है और हम लोग का जैसे सिलेबस हो जाएगा फिनिश, इस टॉक को हम लोग करेंगे, है ना। और रेस्पिरेशन तुम लोग को पढ़ाए हैं थोड़ा सा, लेकिन बुक से नहीं। कैसे होता है रेस्पिरेशन, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये सबको आता है। उस दिन बताए थे, सबको समझ में आया होगा। चलो रेस्पिरेशन, मैम कुछ पूछना था। उसी में रेस्पिरेशन में पूछना था। बोलो। चैप्टर तो वेट मत करो, हम तब तक पेज टर्न करें, तुम पूछो अपना क्वेश्चन पूछो। मैम एक तो हीट चैप्टर से, एक मैम एक अपने मन से। मैम अब जब हम लोग एक मैम एयर लेके जाते हैं वैक्यूम में और मैम वहां पर एयर को छोड़ देते हैं, तो मैम क्या होगा? डिफ्यूज होगा, उसमें जाएगा। वैक्यूम में चले गए, एयर को छोड़ दिए तो एयर, उसका एयर का डिफ्यूजन होगा, उसमें चला जाएगा, उस वैक्यूम प्लेस में एयर आ जाएगा। हाँ, की कोई क्वेश्चन हुआ? अरे बैलून ले लो, सुनना, एक एक ये बताते हैं जब तक रेस्पिरेशन है ना 102 पे। अरे बैलून लिया है कभी खेलने के लिए, और उसको पिन से प्रिक कर दो। Yes, ma'am. बैलून ले लो और उसको पिन से प्रिक कर दो, थोड़ा सा उसमें होल बनाओ ना, तुरंत देखोगे कितना फास्ट रेट से जो है उसमें से एयर निकल करके एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज करेगा। ऐसा नहीं किए हो तो लॉकडाउन ब्रेक होने दो, बैलून ला करके इसको करके देखना। तो मैम ऐसा तो हो चुका है मैम बहुत बार हो चुका है। से क्लास ज्यादा- में भी कुछ बच्चा जो है बदमाशी से बैलून लाता है और उसको पिन से प्रिक करके सू सू आवाज निकालता है। वो जो सू सू का आवाज होता है वो होता क्या है? वही एयर जो है ना बैलून का मैम एयर है, मैम एयर एटमॉस्फेरिक एयर में करता है। डिफ्यूज कर रहा होता है। बैलून का एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर में डिफ्यूज कर रहा होता है और फास्ट रेट से होता है। चूंकि पिन से होल करते हैं ना, छोटा सा होल करते हैं, तो एरिया डिफ्यूजन का एरिया बहुत कम होता है, कांटेक्ट एरिया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है। ये पढ़ोगे बड़े क्लास में, लेकिन अभी सेवेंथ में ही पढ़ लो कि थोड़ा और मैम है, छोटा सा होल होता है, इसलिए फास्ट रेट से उससे एयर बाहर आता है। हाँ, और क्या पूछना है बोलो। और मैम ब्लैक कलर जैसे गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, और मैम पॉलिश्ड और वाइट सब्सटेंस नहीं होता है मैम गुड। तो मैम अगर हम लोग ब्लैक ही कलर के सब्सटेंस को पॉलिश कर देंगे मैम, तब क्या होगा? हाँ, पॉलिश कर देंगे तब क्या होगा? हाँ ठीक है, तो पॉलिश कर देंगे तो वो क्या होता है? ऑब्जर्वर मतलब मैम वो observe रिफ्लेक्ट करना ही है करेगा। ना। अगर उसको पॉलिश कर देंगे ब्लैक कलर को तो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो फिर ऑब्जर्व नहीं करना शुरू होगा। हाँ, उस सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे तो जो भी लाइट रे उस पर फॉल डाउन होगा वो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और मैम जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में ही घूमते रहता है। हाँ, तो कहाँ होगा? होगा कहाँ? एटमॉस्फेयर में नहीं तो फिर कहाँ होगा बोलो? यही तो वजह है कि जो भी रेडिएशन आ रहा है, सन रेडिएशन आ रहा है, हम लोग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये सब रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज करें, एसी यूज करें, उससे जो रिलीज होता है वो गैस, मीथेन गैस, ये जो क्लाउड बना वो सब रेडिएट हीट को जो अर्थ एब्जॉर्ब करती है फिर रेडिएट करती है बाहर, एक्स्ट्रा हीट को रिलीज करती है, वो बाहर जाने ही नहीं देता है। और वही जो है कॉज है ग्लोबल वार्मिंग। लास्ट और ये क्वेश्चन मैम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। हाँ, यही गैस जो है, ये इन सभी गैस के मैम वजह से जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हीट रेडिएशन को ट्रैप कर रहा है, ये सब हीट ट्रैपिंग एजेंट है। CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मैम एनर्जी को कभी हम लोग मैम एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मैम अगर हम लोग साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैम अगर उसी को हम लोग ईयरफोन लगा के हेयर कर रहे हैं, तब मैम क्या होगा? मैम तब तो एनर्जी एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा। एयरफोन लगा के तुम साउंड ले रहे हो, हाँ, तो पूरा का पूरा ऐसा है कि कोई भी मशीन है, इतना इफिशिएंट मशीन नहीं है जो कि 100% वर्क कर। साइड से वो निकलता है। हाँ, वे पूरा टोटल वेव जो हम बोल रहे हैं बेटा, और तुम्हारे पास इतना इक्विपमेंट बना ही नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं उस वो जो साउंड में कन्वर्ट हो रहा है और उस साउंड को रिसीव कर सके, रिसीवर 100% रिसीव कर सके, ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं बना।
तो अब कुछ ना कुछ एनर्जी तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और वो एनर्जी जा रहा Yes, है ma'am. अगर और एटमॉस्फेयर का हीट बढ़ा रहा है, उसको कहते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। तो जरूरत है, अगर तुम टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हो तो अपना स्किल को डेवलप करो, ऐसा मशीन बनाओ जो कि जो भी है हीट, जो है हीट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी, उस सभी को एब्जॉर्ब करके, और वो मशीन जो है यूजफुल एनर्जी में मैकेनिकल कन्वर्ट करे, एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी में। ये जरूरत है, बहुत जरूरत है बनाने का। हाँ, चले आगे बढ़े क्या, रेस्पिरेशन में चले? yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सभी अच्छे से समझ लिए हो। ये जिसको नहीं समझ में आया है, यूट्यूब बार बार देखोगे, ठीक है? ये ऑफलाइन क्लास नहीं ना है, इसीलिए तो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं सर की, रिकॉर्डिंग कर दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, बच्चा देखेगा। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो गया तो उसको देख लेगा, तो समझ में आ जाएगा। All of you are knowing about the respiration. Aerobic or anaerobic respiration. Respiration, as I have explained one day, कि when we take the fresh air from atmosphere, this fresh air having carbon dioxide 0.03%, 21% oxygen, and 78% nitrogen. All air goes inside our nostril, and through the nostril it reaches to the lungs. And lungs having a machine, cells, machine not cell, that take the oxygen and release carbon dioxide gas, and that gas come out through our nostril. Carbon dioxide rich air come out our body through the nostril. And how it taken place, I have explained in better way. Due to different in the concentration of the fresh air and the air that is present in the blood vessels. And the air when reaches to the lungs, lungs having the rich supply of blood vessels, that blood vessels absorb the oxygen rich air. And when oxygen rich air goes to the blood vessels, is combined with the respiratory pigment of the blood, that is known as hemoglobin. And when this oxygen combined with the hemoglobin, it forms oxyhemoglobin. In the form of oxyhemoglobin, oxygen moves to whole part of our body. And where there is requirement of energy, there oxygen taken by and oxygen react with the glucose that is already deposited in the cell of our body. And what happens in the cell? In the cell, oxygen combined with the glucose. And when oxygen combined with the glucose, glucose get oxidized. Means glucose combined with oxygen and form carbon dioxide
water, and energy. That energy is used by the organism for doing different type of physical work or biological work. As you have seen, oxygen is taken inside the cell of the body, where there is deposition of glucose is already. A cell having glucose and oxygen combined with the glucose in the cell, and in the cell glucose get oxidized and form carbon dioxide, water, and energy. That's why respiration is what? It is cellular respiration. Actual respiration takes place in the cell under influence of different type of enzyme present in the cell. वो जो ऑक्सीजन जो है लंग्स में किसके साथ कंबाइन करता है? लंग से ब्लड वेसल्स जो है ऑक्सीजन को ले लेता है, और ब्लड में ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, और ब्लड में एक पिगमेंट है जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और तुम लोग को बार बार बताया कि हीमोग्लोबिन एज द नेम हैज गिवन कि हीमोग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन। हीम मींस आयरन, ग्लोबिन मींस प्रोटीन। ये जो हीमोग्लोबिन बना है आयरन और प्रोटीन का, और ये जो आयरन और प्रोटीन का जो बना हुआ हीमोग्लोबिन है उसका एफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, और तो तुरंत वो जो है हीमोग्लोबिन, ब्लड का जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके और ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो मूव करता है, और जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होता है वहां ये ऑक्सीजन सेल के द्वारा ले लिया जाता है। बॉडी के उस पार्ट में सेल जो है उसको ऑक्सीजन को ले लिया, और फिर ये ऑक्सीजन क्या करता है कि ग्लूकोज जो ऑलरेडी सेल में जमा है, डाइजेशन के बाद पढ़े थे ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना, ये ग्लूकोज, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े तुम लोग। तो वो ग्लूकोज ऑलरेडी डिपॉजिट है सेल में, और जैसे ही ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन से ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन हुआ, और उस कॉम्बिनेशन को एक स्पेशल नेम देते हैं ऑक्सीडेशन। उस नेम को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जब ग्लूकोज जो कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुआ। ये एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म जो है फिजिकल वर्क के लिए करता है, जो हम लोग फिजिकल कपड़ा धोए, चले फिरे, इधर उधर मूवमेंट किए, वो फिजिकल वर्क। और बायोलॉजिकल वर्क जो बॉडी के अंदर, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वर्क होता है उस वर्क को कहते हैं बायोलॉजिकल वर्क। तो इन दोनों वर्क के लिए जो है एनर्जी रिलीज होता है, और चूंकि ये सेल में ही होता है ना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम और कैसे होता है बड़े क्लास में पढ़ोगे, लेकिन ये एंजाइम के इन्फ्लुएंस में, एंजाइम के प्रभाव में, एंजाइम के प्रेजेंस में ही ये ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है एंजाइम के इन्फ्लुएंस में, और वो सेल में होता है, इसलिए रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन and anaerobic respiration. Anaerobic As the respiration. name has given, aerobic respiration takes place. Aerobic respiration takes place in presence of oxygen. And every time we respire in the presence of oxygen, our respiration is the aerobic respiration. We are respiring in the presence of oxygen, but sometimes our muscles respire anaerobically, but sometimes, very few times, when it is a necessity of the quick energy, that time our muscles started respiring anaerobic. But always, every time we respire aerobic respiration, our respiration is aerobic respiration, presence of oxygen. And anaerobic respiration, when organisms respire in absence of oxygen, that respiration is known as
anaerobic respiration that I have explained one day. When the solution of rice and pulses are kept on the atmospheric condition, it is exposed to atmosphere, it come in the solution and it started respiring. Fermentation of solution takes place. Give batter. Why Yes, ma'am, fermentation of solution? Due to respiration of the yeast. Whatever yeast introduced inside the solution of the rice and pulses that respire, and due to respiration, alcohol and carbon dioxide is released. So it is anaerobic respiration. For example, for anaerobic respiration activity have given in the page 104. So the anaerobic respiration in the yeast. For this, a conical flask is taken, and conical flask is added with some lukewarm water and 1 teaspoon of sugar. Lukewarm water, all of you are knowing, about 30 degree or 32, 34. The tolerable temperature is known as lukewarm water. जो उसमें फिंगर डाल करके डालते हैं तो उंगली उसको टॉलरेट कर सकता है, तो उसको कहते हैं lukewarm water. तो तो वो lukewarm में थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी वाटर लेते हैं और उसमें 1 टीस्पून जो है सुगर डाल देते हैं. Then after few granules of dry yeast is added to this solution. yeast मिलता है इडली डोसा का सॉल्यूशन बनाने के लिए, जब विंटर में नहीं होता है ना जल्दी से, तो ईस्ट मिलता है. और फिर बेकरी में भी ईस्ट पाउच में करके आता है, वो ग्रोसरी शॉप में ये मिलता है, इजीली अवेलेबल है. तो उस ईस्ट को क्या करते हैं, सॉल्यूशन में डाल देते हैं और फिर it is kept at room temperature and observe this setup after 3 and 4 days. अभी के सीजन में 2 ही दिन बाद ऑब्जर्व कर सकते हो. You will observe bubbles are appear in the solution that moves up to the surface and form a food. एकदम झाग जैसा झाग बना देता है. And alcoholic smell come out from the flask when you remove the cork. If a lighted matchstick is brought close to the mouth of the flask, it will get extinguished. अगर लाइटेड वो कैंडल अगर लाएंगे या फिर मैच स्टिक लाएंगे तो वो तुरंत पुट ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा.